I, Advocate Nilofer Masood, in the capacity of, President, do swear do swear in the name of in the name of God God that I will work for the progress, for the progress, prosperity, prosperity, and betterment and betterment of the Bar Association of the Bar Association and welfare of the members welfare of the members without any fear without any fear or favor, ill will, or ill motives, and further undertake to uphold the Constitution, prestige, dignity, and honor of the Bar Association, being the member of the executive Bar Association Baramulla. Congratulations. Thank you, sir. Thank you. We should order. Lazım bu parça. Koymak. Bu helal olsun. Yes. Unit, इसमें और प्राणी I, Mashar Malik Bhatt, Advocate, in the capacity of Vice President, do swear in the name of God in the name of God that I will work for the progress, prosperity, and betterment of the Bar Association the Bar Association and welfare of the members without any fear or favor, ill will, or ill motives, and further undertake to uphold the Constitution, prestige, dignity, and honor of the Bar Association, being the member of the executive Bar Association Baramulla. I, Advocate Mahmood Sain Lone, Do swear in the name of God the name of God that I will work for the progress, prosperity, and betterment of the Bar Association and welfare of the members without any fear or favor, ill will, or
ill motives and further undertake to uphold the Constitution, prestige, dignity, and honor of the Bar Association, being the member of the executive of Bar Association Baramulla. Thank you. I, Irfan Ahmad Wani, in the capacity of Joint Secretary, do swear in the name of God that I will work for the progress, prosperity, and betterment of the Bar Association and welfare of the members without any fear or favor, ill will or ill motives, and further undertake to uphold the Constitution, prestige, dignity, and honor of the Bar Association, being the member of the executive of Bar Association Baramulla. Thank you. जुबैर साहब पर हाँ ठीक Mr. Ahmed Umar Bhatt, the newly elected General Secretary. I, Advocate Ahmed Umar Bhatt, in the capacity of General Secretary, do swear in the name of God that I will work for the progress, prosperity, and betterment of the Bar Association and welfare of the members without any fear or favor, ill will or ill motives, further undertake to uphold the Constitution, prestige, dignity, and honor of the Bar Association, being the member of the executive Bar Association Baramulla. Thank you. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं इलेक्शन कमीशन बहुत ही वाइब्रेंट और फॉल मेंबर जो हैं हमारे इम्तियाज़ साहब एडवोकेट, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हर मेंबर को गार्लैंड करें और उन्हें एक बुके दें। उमर भाई विशाल यार ये दिया चाहे
तो इन्होंने ही हैज़ प्रूव्ड मी करेक्ट, क्योंकि जब हमारी वो काउंटिंग हो रही थी नीचे, उसके बाद मैं जब बाहर आया था तो मैंने कहा था कि ये कोई इलेक्शन नहीं, क्योंकि इलेक्शन में हार जीत होती है, यहाँ मफादात नहीं, यहाँ सिर्फ इस्लाहात है। ये एक फैमिली अरेंजमेंट है बाय वे ऑफ इलेक्शन, और कुछ नहीं है, जस्ट टू मैनेज द फैमिली अफेयर। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिनको आज हमने फूल पहनाए हैं, इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी किस्मत में ये दिन भी लिखा होगा, इंशाल्लाह वो भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ पीछे जो बैठे हैं, कहते हैं उर्दू में एक मुहावरा है कि सर उठाकर चलने से पहले कुछ कदम सर झुकाकर भी चलने पड़ते हैं, तो वो आदत डालें। वो सर झुकाकर आज चलेंगे तो कल सर उठाकर भी चल सकते हैं। तो जो सर उठे हुए ही रहते हैं तो वो टूट रहते हैं। हमारी बहनें हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि इज्जत और एहतराम जो है, रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट। अगर आप मेरी इज्जत करते हो, आप मेरी इज्जत नहीं करते हो, आप अपने लिए इज्जत कमा रहे हो। अगर आपको इज्जत का कोई कॉन्सेप्ट या परसेप्शन नहीं है तो फिर आपको लॉ का क्या परसेप्शन होगा? कोई आपसे ये कहेगा कि डिफाइन लॉ, रेस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, लॉ कैसे आप डिफाइन करें? और उनका आशीर्वाद जिसे हम साथी है, चाहे कोई पुरानी साथी हो सकता है, उसमें हिलाल साहब भी हो। जब आपने एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर ओहदा संभाला है, वजारत का, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि हर नज़म के पीछे मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, और उन मसाइल को लेकर आप क्या करने जा रही हैं, क्योंकि आपको वो ओहदा दिया गया है जहाँ पर आपको उसकी बहुत बेहतर तरीके से आपको आगे ले जाना है उन मसाइल को। देखिए, पहले ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी ओथ सेरेमनी थी, आप उसमें आपने शिरकत की, आपका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खुसूसन मैं हर एक मेंबर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने वोट भी किया, जिन्होंने वोट नहीं किया। तो सब के लिए ये एक फैमिली है जहाँ पर हम इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं। आपने खुद देखा किस तरीके से हमारे मेंबर्स ने यहाँ पर शिरकत की और किस तरीके से उन्होंने खुशी का इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लीगल फैटर्निटी है तो ये बहुत ही नेगलेक्टेड है। इनके काफ़ी मसले और मसाइल हैं जिनको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ऑलरेडी रोल जो है 200 को टच कर रहा है, और जहाँ आप चैम्बर्स की बात करेंगे वहाँ 40-50 चैम्बर है। पहले ही एक अच्छा माहौल जहाँ पर एक लॉयर बैठ सके, जहाँ पर वो अपना काम कर सके, जहाँ पर वो एक क्लाइंट के साथ बात कर सके इज़्ज़त के साथ, तो वो जगह उसको मुहैया नहीं है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको वो जगह मुहैया की जाए, और साथ में बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें प्रॉब्लम्स है कुछ, हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी उठाएंगे, वो उजागर करेंगे सामने। और काफ़ी हमारे मसले जो है यंग स्लॉट, जो यंग जूनियर्स हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये पेशा आपने देखा है कि यहाँ पेशेंस एक लॉयर के लिए बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं तब तक 10 साल गुजर गए होते हैं। उन 10 सालों तक मिनिमम हमारे जूनियर्स को कोई स्टेफंड मिले जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स को मिलता है, तो हम उसकी मांग भी रखेंगे, और उसके लिए जितना भी कुछ हमें करना पड़े हम उसके लिए भी लड़ेंगे अपने यंग लॉयर्स के लिए, ताकि एक जो फ्रेश माइंड होता है, एक जो यंग टैलेंट होता है, हम उससे बिल्कुल रोशन हो जाए। और हमें उनकी ज़रूरत है इस हमारे फैटर्निटी में। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि वो थक जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल और फिर नौकरियों के पीछे वो दौड़ते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, और इससे बेहतर, क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन को 22 साल दे दिए और मुझे नहीं महसूस होता है कि इस प्रोफेशन से बेहतर कोई और प्रोफेशन है। इसमें आप इंडिपेंडेंस जो है वो आप खुद कफील होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं इसमें। तो वो सब चीज़ें जो आप दूसरे शोबों में हासिल नहीं कर पाते हैं, वो हर कोई चीज़, नाम, फेम, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उनकी बका के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी तो हम वो इंशाल्लाह करेंगे। अगर हम प्रायोरिटाइज करने की बात कहें और उन इश्यूज़ को, तो सबसे पहले जो सबसे मेन इशू है यहाँ पर उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो वो इशू क्या है? देखिए, काफ़ी सारे, अगर हम पब्लिक एंड लार्ज को भी ले लेंगे, उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। जैसे उसमें फैमिली कोर्ट है, एक फैमिली कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जज साहिबान हैं, हमारे 6-7 कोर्ट है। अगर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी ले लेंगे, उसमें आपने, जैसे कि मैंने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, जैसे उसमें आपके कुछ कोर्ट्स की डर्थ है यहाँ पर,
तो कंज्यूमर कोर्ट वो हमारे फैटर्निटी जो यहाँ पर प्रेमिसेस है वो बाहर काम कर रहा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हेलम ऑफ अफेयर है कि वो वापस एक ही छत के नीचे, जिस तरीके से श्रीनगर में हर कोई कोर्ट एक ही जगह है, तो इसी तरह हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर पब्लिक एंड लार्ज के लिए उनकी सहूलियतों के लिए और हमारे लिए भी वो इजी हो जाता है जब एक छत के नीचे सारे कोर्ट्स होंगे। इसी तरीके से CGM कोर्ट है वो सोपोर में है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो होना चाहिए। इसी तरीके से काफ़ी ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पर एक हेडक्वार्टर पर होना बहुत ज़रूरी है, हम उसके लिए भी लड़ेंगे क्योंकि वो हमारा हक है, हम उसके लिए लड़ेंगे। और साथ में जो सहूलियत, जिस चीज़ से सहूलियत हो सके, ताकि हम एक हमारा वो मोटिव रहा है कि जस्टिस एट डोर स्टेप, जस्टिस एट डोर स्टेप तभी मुहैया होगा यहाँ के लोगों को जब आपके हेडक्वार्टर्स स्ट्रांग होंगे। तो बहुत ज़रूरी है हेडक्वार्टर को स्ट्रांग करना, बहुत ज़रूरी है जो वैकेंसीज़ है जजों की उनको फिल करना, बहुत ज़रूरी है कि जो कोर्ट्स है एक एक्स्ट्रा बर्डन जो हर एक कोर्ट पर है, अलग अलग कोर्ट्स अपने अपनी जगह पर अलग अलग से एस्टैब्लिश हो जाए। क्या आप इसको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना अगर हम देखें तो यहाँ पर रोज़ाना 2 से 3 हज़ार लोग तकरीबन अफराद यहाँ पर रोज़ाना से आते हैं और अपने केस के हवाले से आपने बात करते हैं, उनके लिए वेटिंग रूम भी होना चाहिए यहाँ पर। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो पब्लिक एट लार्ज है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें ये चीज़ भी है कि उनके लिए वेटिंग रूम हो, उनके लिए अलग से वॉशरूम्स हो, उनके लिए अलग से रेस्ट रूम्स हो, तो वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर हम बाहर के वकीलों की बात करें जो बाहर से आपकी इस एसोसिएशन में मेंबरशिप लेना चाहेंगे, क्या उनके लिए भी आपके दरवाजे यहाँ खुले रहेंगे? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से जो कहता है तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। शुक्रिया। देखिए, पहले ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी ओथ सेरेमनी थी, आप उसमें आपने शिरकत की, आपका मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। खुसूसन मैं हर एक मेंबर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वोट भी किया, जिन्होंने वोट नहीं किया। तो सब के लिए ये एक फैमिली है जहाँ पर हम इस वक्त इकट्ठे बैठे हुए हैं। आपने खुद देखा किस तरीके से हमारे मेंबर्स ने यहाँ पर शिरकत की और किस तरीके से उन्होंने खुशी का इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लीगल फैटर्निटी है तो ये बहुत ही नेगलेक्टेड है। इनके काफ़ी मसले और मसाइल हैं जिनको उजागर करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ऑलरेडी रोल जो है 200 को टच कर रहा है, और जहाँ आप चैम्बर्स की बात करेंगे वहाँ 40-50 चैम्बर है। पहले ही एक अच्छा माहौल जहाँ पर एक लॉयर बैठ सके, जहाँ पर वो अपना काम कर सके, जहाँ पर वो एक क्लाइंट के साथ बात कर सके इज्जत के साथ, तो वो जगह उसको मुहैया नहीं है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उनको वो जगह मुहैया की जाए। और साथ में बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें प्रॉब्लम्स है कुछ, हम इंशाल्लाह उन चीज़ों को भी उठाएंगे, वो उजागर करेंगे सामने। और काफ़ी हमारे मसले जो है यंग स्लॉट, जो यंग जूनियर्स हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये पेशा आपने देखा है कि यहाँ पेशेंस एक लॉयर के लिए बहुत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का ट्रस्ट जीतते हैं तब तक 10 साल गुजर गए होते हैं। उन 10 सालों तक मिनिमम हमारे जूनियर्स को कोई स्टेफंड मिले जिस तरीके से दूसरे स्टेट्स को मिलता है, तो हम उसकी मांग भी रखेंगे और उसके लिए जितना भी कुछ हमें करना पड़े हम उसके लिए भी लड़ेंगे अपने यंग लॉयर्स के लिए, ताकि एक जो फ्रेश माइंड होता है, एक जो यंग टैलेंट होता है, हम उससे बिल्कुल रोशन हो जाए। और हमें उनकी ज़रूरत है इस हमारे फैटर्निटी में। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि वो थक जाते हैं 2 साल 3 साल 4 साल और फिर नौकरियों के पीछे वो दौड़ते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है और इससे बेहतर, क्योंकि मैंने इस प्रोफेशन को 22 साल दे दिए और मुझे नहीं महसूस होता है कि इस प्रोफेशन से बेहतर कोई और प्रोफेशन है। इसमें आप इंडिपेंडेंस जो है वो आप खुद कफील होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं इसमें। तो वो सब चीज़ें जो आप दूसरे शोबों में हासिल नहीं कर पाते हैं, वो हर कोई चीज़, नाम, फेम, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो उनकी बका के लिए जो भी चीज़ें करनी पड़ेंगी तो हम वो इंशाल्लाह करें। देखिए, काफ़ी सारे अगर हम पब्लिक एंड लार्ज को भी ले लेंगे उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। जैसे उसमें फैमिली कोर्ट है, एक फैमिली कोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जज साहिबान हैं, हमारे 6-7 कोर्ट है। अगर हम लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी ले लेंगे, उसमें आपने, जैसे कि मैंने अभी डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी, जैसे उसमें आपके कुछ कोर्ट्स की डर्थ है यहाँ पर। तो कंज्यूमर कोर्ट वो हमारे फैटर्निटी जो यहाँ पर प्रेमिसेस है वो बाहर काम कर रहा है, हम रिक्वेस्ट करेंगे जो हेलम ऑफ अफेयर है
है कि वो वापस एक ही छत के नीचे, जिस तरीके से श्रीनगर में हर कोई कोर्ट एक ही जगह है, तो इसी तरह हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर पब्लिक एंड लार्ज के लिए, उनकी सहूलियतों के लिए और हमारे लिए भी वो इजी हो जाता है जब एक छत के नीचे सारे कोर्ट्स होंगे। इसी तरीके से CJM कोर्ट है, वो सोपोर में है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो होना चाहिए। इसी तरीके से काफ़ी ऐसे कोर्ट्स हैं जहाँ पर एक हेडक्वार्टर पर होना बहुत ज़रूरी है। हम उसके लिए भी लड़ेंगे क्योंकि वो हमारा हक है, हम उसके लिए लड़ेंगे। और साथ में जो सहूलियत, जिस चीज़ से सहूलियत हो सके, ताकि हम एक हमारा वो मोटिव रहा है कि जस्टिस एट डोर स्टेप, जस्टिस एट डोर स्टेप तभी मुहैया होगा यहाँ के लोगों को जब आपके हेडक्वार्टर स्ट्रांग होंगे। तो बहुत ज़रूरी है हेडक्वार्टरों को स्ट्रांग करना, बहुत ज़रूरी है जो वैकेंसीज़ है जजों की उनको फिल करना, बहुत ज़रूरी है कि जो कोर्ट्स है एक एक्स्ट्रा बर्डन जो हर एक कोर्ट पर है, अलग अलग कोर्ट्स अपने अपनी जगह पर अलग अलग से एस्टैब्लिश हो जाए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो पब्लिक एट लार्ज है उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट एक इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसमें ये चीज़ भी है कि उनके लिए वेटिंग रूम हो, उनके लिए अलग से वॉशरूम्स हो, उनके लिए अलग से रेस्ट रूम्स हो, तो वो सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर हम बाहर के वकीलों की बात करें जो बाहर से आपकी इस एसोसिएशन में मेंबरशिप लेना चाहेंगे, क्या उनके लिए भी आपके दरवाजे यहाँ खुले रहेंगे? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से जो कहता है तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। शुक्रिया।